वेलकम बैक टू क्रिकेट दिस इज़ उज़ैर अमान योर होस्ट। और आज क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जो जो चीज़ें हुई हैं, जो जो अपडेट्स हुए हैं, जो जो मैचेस हुए हैं, उस रिलेटेड हम आज गुफ्तगू करेंगे। सो एज यू ऑल नो, आज पहला T20 था बिटवीन पाकिस्तान एंड जिम्बाब्वे, जो कि अभी अभी कंक्लूड हुआ है एंड पाकिस्तान हैव वन द गेम कॉम्प्रहेंसिवली। और स्कोर कार्ड भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। So in the first innings, Pakistan obviously they won the toss. Salman Ali Agha, who was making a debut as captain, उन्होंने batting choose की and they started off well. Umair bin Yusuf ने साइम अयूब के साथ open किया था and Umair bin Yusuf departed early after scoring 16 runs और he's early on in his career, but we all know he has shots in his range और उनके पास बहुत shots available हैं. He plays well as well. So very early to take a call on him, but obviously a great prospect, a great potential for Pakistan in the future. But they gave Pakistan a good start and जिसके बाद वो out हुए और साइम अयूब और उस्मान खान ने continue की partnership and they were able to score 52 runs in the power play. But उसके बाद जो मुझे शिकायत है और majority of the Pakistani fans that they also complained and talk about this thing कि पाकिस्तान were not able to score boundaries on regular basis, जो कि middle overs होते हैं उसमें, and due to which Saim Ayub had to throw his wicket away. He went for a shot over mid on over long off and he got caught at the boundary, जो कि obviously एक squeeze बन गया था जिसकी वजह से boundaries नहीं आ रही थी. So he perished away after scoring 26 runs and 24 runs. And then Usman Khan with Salman Ali Agha. They both played on the crease. It was a very slow partnership again. नहीं लग रही थी boundaries, strike rotation नहीं था. Usman Khan played 30 balls and scored just 39 runs at the strike rate of 130 runs, which is not acceptable at all आजकल के time में. And then Salman Ali Agha, no disrespect to him, but I am sorry, he is not a T20 player. सलमान अली आगा, आपने कैप्टन उनको ज़रूर बनाया इस टूर के लिए, आपने उनको वाइस कैप्टन बनाया फॉर ऑल 3 फॉर्मेट्स, बट think again, does he deserve a place in the T20 side or in the ODI side? ODI में चले फिर भी आपके पास टाइम होता है, but if I talk about the T20 side, does he make the side or no? I do not think so. उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी PSL में जितनी परफॉर्मेंसेज दी थी, those were in the top order. और वो तभी आती थी जब आपकी अर्ली विकेट गिरती थी, वो क्रीज पे थोड़ा टाइम लेते थे और तब रन्स बनते थे. So this is a decision that PCB will have to rethink, I think. And उन्होंने आज सिर्फ 13 रन बनाए हैं and he consumed 19 balls, playing at a strike rate of 68 runs. But thankfully, thanks to Tayyib Tahir and Irfan Khan Niazi, नीचे से आके उन्होंने quick runs मारे, जिसमें Tayyib Tahir was 39 of 25 and Irfan Khan Niazi was 27 of 15. They scored 36 runs in the last 2 overs, helping Pakistan's score go up to 165. And then obviously Pakistan's bowling lineup, it has always done well. It has always got names जो कि obviously इस tour पे young players आ रहे हैं, but they've done well today as well. And a comprehensive victory of 57 runs. Sufyan Mukim, who's an outstanding player who has a lot of potential. Unfortunately, बहुत time injury भी थी इन्हें, but he's made a comeback and he's now been introduced to international cricket. ऑस्ट्रेलिया टूर में भी इन्होंने बहुत अच्छा किया था. He picked up Glenn Maxwell in his first match. He picked up Stoinis in his first match. और आज भी उन्होंने 3 बहुत अच्छी विकेट्स ली. हमने उन्हें देखा गूगली करते हुए, हमने उन्हें देखा लेग स्पिन करते हुए. सो अमेजिंग प्रॉस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान. एंड एक बहुत टाइम बाद एक लेग स्पिनर मिला है हु कैन स्पिन द बॉल एंड जो कि अच्छी लाइन एंड लेंथ पे कंटिन्यूसली पिच भी कर रहे हैं. सो ग्रेट रिजल्ट फॉर पाकिस्तान, बट अगैन बैटिंग रीथिंक करनी होगी. इट वॉज अ पिच जिसपे ये ज़्यादा बना सकते थे एंड मिडिल ऑर्डर्स को यूटिलाइज कैसे करना है वो इनको आगे मैचेस में जाते हुए देखना होगा. उसके बाद बेसबॉल हैज़ अराइव्ड इन क्राइस्टचर्च. आपको कल मैंने बताया था न्यूजीलैंड की 4 रन की लीड थी एंड दे हैड 4 विकेट्स इन हैंड, जिसके बाद डैरिल मिचेल ने एक बहुत रेजिस्टेंस शो की, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, बट न्यूजीलैंड वर ओनली एबल टू गिव अ टारगेट ऑफ 104 रन्स टू इंग्लैंड. और आज डे 4 था एंड बेसबॉल ने वो 104 रन का टारगेट 12.4 ओवरों में कंप्लीट भी कर दिया विद अ रन रेट ऑफ 8.2, जिसमें जेकब बेथल he was playing on his debut and he scored 50 runs of 37 balls, and this shows
कि वो अपने यंगस्टर्स को कितना बैक करते हैं, कितना ट्रस्ट करते हैं. He is a player who has no first class centuries and he has been given the number 3, the most important spot. Oli Pope जो कि उस spot को संभाल रहे थे, उनको वापस अपनी original position which is the number 6 role, number 5 और number 6 role उस पर लाया गया है और जेकब बेथल को ये responsibility दी गई है और आपके सामने है जो उन्होंने किया है आज. He was destructive, he played his shots and he was able to score a quick half century helping England reach the target in just 12.4 overs. So again, न्यूजीलैंड के लिए ये काफ़ी बड़ी हार है in the context of the World Test Championship final की रेस, क्योंकि वो भी एक कंटेंशन में आ गए थे after beating India 3-0 in India, but again वो अपने घर पे अब हार गए हैं इंग्लैंड से 1-0. तो अब let's see what the next test holds for us and let's see what the future of New Zealand cricket is in this particular cycle of the World Test Championship. उसके बाद जो इंडिया वर्सेस प्राइम मिनिस्टर 11 का मैच हुआ है उसके बारे में अगर हम बात करें तो 50 ओवर गेम थी एज यू ऑल नो, बट ऑब्वियसली स्टार्ट में बारिश हो गई थी जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर 11 ने PM 11 ने वर एबल टू प्ले जस्ट 46 ओवर्स एंड दे वर सक्सेसफुल इन स्कोरिंग 240 रन्स, जिसमें से कॉन्स्टास ने सेंचुरी मारी. उसके बाद मिडिल में एक बंच आया जहाँ पे बहुत अर्ली क्विक विकेट्स मिली. हर्षद राणा पिक्ड अप 4 विकेट्स इन दैट फेज एंड उसके साथ साथ बाकी और बॉलर्स को भी विकेट मिली और सरफराज खान वॉज कीपिंग द विकेट्स एंड रोहित शर्मा फील्ड में हमें वापस नजर आए. उसके अलावा जो है अब बॉलिंग देखें, हर्षद राणा डिड वेल. उसके बाद जो है सिराज वॉज एक्सीलेंट विद द बॉल. सिराज के अगर हम फिगर्स देखें, ही bowled 7 overs, 1 maiden, 18 runs and 1 wicket. He was hitting the ball, the pitch hard. He was bowling at a good length with good pace और उससे ट्रबल हो रहा था बैट्समैन को. बट बीच में विकेट गिरने के बावजूद भी PM 11 स्कोर्ड 240 रन्स एंड उसके बाद जायसवाल शुरू में थोड़ा रस्टी लगे, शुरू में थोड़ा रिस्की शॉट्स लग रही थी, एजेस निकल रहे थे, बट व्हेन हिज आई वाज सेट there was no one better than him on the pitch. So he scored a flurry of 45 runs और KL राहुल ने भी एक स्टेडी स्टार्ट लिया जो रिटायर आउट हो गए थे. उसके बाद शुभमन गिल आए. शुभमन गिल कीप इन माइंड एक कमबैक कर रहे हैं और देवदत्त पाटिकल को मोस्ट प्रॉब्ली फाइनल 11 में रिप्लेस करेंगे. ही वॉज एबल टू स्कोर 50 रन्स, जिसके बाद रिटायर हुए, वो रिटायर्ड आउट हुए. उसके बाद आए कैप्टन और कैप्टन एकदम से फ्लॉप हो गए फिर से. Rohit Sharma got out on one. वही outside off ball आई early on in his innings, nudged the ball and caught first slip. Rohit Sharma needs to sort this thing out, otherwise ऑस्ट्रेलिया की pitches हो और ये hard length की pitch हो और hard length लगे तो it's a walking wicket for Rohit Sharma. तो ऑस्ट्रेलिया must be happy that Rohit Sharma is back considering वो उनकी क्या फॉर्म चल रही है और रोहित शर्मा कैसे वॉकिंग विकेट बन सकते हैं स्पेशली अर्ली ऑन इन दी इनिंग्स. और रोहित शर्मा नीड्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ. वो कैप्टन है इस टीम के. सो रोहित शर्मा नीड्स टू रियलाइज कि जब वो जल्दी आउट हो जाते हैं, ही ओपन्स द गेट फॉर द मिडल ऑर्डर्स एंड दे गेट एक्सपोज टू द न्यू बॉल वेरी अर्ली. So he needs to look into his technique, see what he's doing right and what he's not doing right and work on that thing. क्योंकि ये बहुत repeatedly इनका ये आ रहा है कि early wickets throw कर देते हैं, swing conditions में issue होती हैं और आपको cheat code पता है रोहित शर्मा को कैसे आउट करना है. Bring in a left arm bowler early on in the innings, in swinger, either an LBW or a bold. So let's see how he works on his technique, how he improves this thing or whether or not वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे या नहीं. और क्या रोहित शर्मा ओपन करेंगे, दैट्स अनदर क्वेश्चन दैट वी विल बी सीइंग इन द नियर फ्यूचर एंड दिस विल बी आंसर्ड विद टाइम. बाकी के लिए आगे की जो अपडेट्स हुई हम आपको प्रोवाइड करेंगे. एंड रिमेंबर, इफ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड द क्रिकेट फ्रेटर्निटी. सब्सक्राइब टू द चैनल. हम लोग 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं. सो दिस विल बी अ स्मॉल माइलस्टोन फॉर अस दैट वी विल बी सेलिब्रेटिंग एज वेल. बाकी क्रिकेट की जानिब से जो भी अपडेट्स आई, जो कुछ आई, वी विल बी गेटिंग बैक टू यू. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. उज़ैर अमान साइनिंग ऑफ.